اب دیکھیں یہ انگریز نے بارڈر بنا دی تو بارڈر کے حساب سے وہاں والے وہ کمیٹی اعلان کر رہی ہے تو ان کی نہیں مانی جا رہی، اور انڈیا میں مطلب بمبئی میں نہیں مانی جا رہی۔ محمد بھائی جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو اختلاف مسئلہ ہے یہ اسی طرح سیاسی مسئلہ ہے جس طرح تقلید کا مسئلہ تھا، کہ تقلید جو ہے حکمرانوں اور بادشاہوں نے پھیلائی، اسی طرح یہ اختلاف مطالعہ کا بھی مسئلہ ہے، اور آج ہم اس کی پریکٹیکل مثال بھی دیکھنے مل رہے ہیں۔ جو کمیٹی ہوتی ہے چاند کی، ان کی سیاست ہم دیکھ رہے، آج بھی دیکھ رہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال پہ بھی دیکھ لیجئے، ممبئی میں پچھلے سال عید نہیں ہوئی، کراچی میں ہوئی، جبکہ یہ دونوں کا مطلب ہمیشہ سے سیم چلتا آیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ انگریز نے بارڈر بنا دی تو بارڈر کے حساب سے وہاں والے وہ کمیٹی اعلان کر رہی ہے تو ان کی نہیں مانی جا رہی، اور انڈیا میں مطلب بمبئی میں نہیں مانی جا رہی، جبکہ ہمیشہ سے کراچی والوں کا مسئلہ اور ممبئی کا مسئلہ یہ سیم رہا ہے۔ اور جو نص سری جس کو ابھی شیخ کفایت اللہ ثنابی حفیظ اللہ نے بھی کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو نص سری کا، اگر یہ نص سری ہوتی شیخ تو ہمارے بڑے بڑے علماء جیسے شیخ البانی اور شیخ بن باز رحم اللہ اور حافظ علامہ جلال الدین قاسمی نے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بات کہی، تو یہ سارے علماء اس حدیث میں اختلاف کیوں کرتے؟ ان کے سامنے حدیث تو تھی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو گواہی کے طور پر معمول کیا ہے کہ انہوں نے اس لیے قبول نہیں کیا، یہی وجہ بتائی کہ ایک گواہی کی مسئلہ تھا وہاں پہ بھی۔ تو یہ نص سری تو نہیں ہے نا، نص سری ہوتی تو اگر اس کو سمجھنے میں بڑے بڑے علماء میں اختلاف تو نہیں ہوتا۔ تو نص سری تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ جی شیخ کفایت کیا آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے میں دو سوال سمجھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے نص صریح کہا گیا ہے حدیث قریب کو، تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ نص صریح ہوتی اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال میں بھائی جو ہے نا میرے، جو نص صریح اور اجماع میں کنفیوز ہیں، ہم اجماع نہیں کہہ رہے اس مسئلے میں کہ اجماع ہے، اجماع ہوتا تب اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف تو ہے، اختلاف تو ہم پہلے سے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، تو اختلاف ہے اس کا مطلب کہ اس میں اجماع نہیں۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے اس میں، اس وجہ اجماع نہیں، اسی وجہ سے تو اختلاف ہے، اس وجہ سے ہم سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختلاف رکھنے کا حق ہے۔ اگر یہ اجماعی مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو اختلاف سائغ مانتے ہی نہیں۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ اختلاف سائغ ہے، یعنی دونوں طرف کے لوگوں کی اپنی اپنی دلیلیں، اس لیے شروع سے فقہا جو ہے اس مسئلے میں مختلف اختلاف رہا ہے ان کا۔ اب آپ مجھ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نص صریح نہیں ہے اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شمولی رویتی نص صریح ہے، تو آپ ہی پھر آپ سے میں سوال کرنا ہوں کہ اگر یہ نص صریح کا اختلاف کیوں ہوا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس والی روایت، قریب والی روایت نص صریح نہیں وجہ سے اختلاف ہوا نا، اور آپ کہہ رہے ہیں شمولی رویتی یہ نص صریح ہے، تو اختلاف کیوں ہوا پھر اگر صریح نص موجود تھی؟ تو نص صریح اس متعلق ہے کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، تو اس بات پہ تو سب متفق ہے، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو۔ پھر کیوں اختلاف؟ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے کیسے اختلاف کر لیا؟ اگر یہ نص صریح تھی تو ابن تیمیہ کے میرے بھائی آپ کہنے کہ نص صریح کسی مسئلے میں موجود ہو تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ نص صریح موجود ہو تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کہنے کہ شمولی رویتی یہ نص صریح ہے، آپ کہہ رہے ہیں شمولی رویتی یہ نص صریح ہے اتحاد مطلع کے معاملے میں، تو پھر اختلاف کیوں ہو گیا؟ آپ خود جو بول رہے ہیں نا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ جو بول رہے ہیں کہ نص صریح ہو تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہی بول رہے ہیں آپ نا؟ ہاں اگر کوئی حدیث نص صریح ہے، ہم نے جو کہا کہ قریب والی ہم نے یہ کہا کہ قریب والی روایت نص صریح ہے، ہم نے یہ کہا کہ قریب والی روایت نص صریح ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نص صریح نہیں کیونکہ اور دلیل ادھر کیونکہ اختلاف ہوا ہے، یہی بات ہے نا؟ میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں قریب والی روایت ہم نے کہا نص صریح ہے، آپ نے کہا نص صریح نہیں ہے، آپ نے دلیل یہ دی کیونکہ اختلاف ہوا اس کا مطلب کہ نص صریح نہیں ہے، یہی بات آپ بول رہے ہیں نا؟ نہیں میں یہ نہیں کہا کہ اختلاف ہوا، میں نے کہا اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ ارے وہی تو، اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے، اس کا مطلب نص صریح نہیں ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شمولی رویتی کی یہ نص صریح ہے، پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ شمولی رویتی کی یہ نص صریح ہے، جی تو شمولی رویتی کو سمجھنے میں اختلاف ہوا نا، تو نص صریح کہاں رہے گی پھر وہ بھی؟ تو آپ کے جو آپ کی دلیل کی اختلاف ہونے کا بھائی مطلع کا اختلاف تو ہے نا واضح طور پہ؟
सुमुल रुयती ही को सारे उलमा ने सारे आलम सारे सुमुल रुयती ही को अहले इल्म में सारे लोगों ने पूरी दुनिया के लिए रुयत को मुतबर नहीं माना है ना, अपने मतलब के लिए मुतबर माना है। तो नस्से सरी होने का मतलब नहीं कि इसमें इख्तिलाफ नहीं होगा। बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ होता है, हालांकि नस्से सरी मौजूद होती है। तो जब इख्तिलाफ हो जाए तो नस्से जो नस आपके पास मौजूद है जो सराहत के साथ है, उस पर अमल करना चाहिए। हम यही इतनी बात कह रहे हैं बस। और दूसरी बात देखो शेख, मैं जो लोग कहते हैं इख्तिलाफ मतल है, वो आज तक के कोई एक हद तय नहीं कर सके आज तक के। इसमें भी इस बात का सबूत मिलता है कि ये कोई शरई हुक्म अगर होता तो कोई एक तो हद तय होती ना शेख, आज तक हद तय नहीं हुई। अभी देखे कभी गुजरात वाले अलग करते हैं। अब अच्छा, जो लोग इत्तेहाद के कायल हैं, जो लोग इत्तेहादी रुयत के कायल हैं, उनमें इख्तिलाफ है कि नहीं चांद के मामले को लेकर के? हाँ है, इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ तो जो इत्तेहाद के कायल है उनमें भी है। अगर इख्तिलाफ मताला के जो कायल है, अगर उनमें इख्तिलाफ है तो इत्तेहादी मताला के जो कायल है उनमें भी इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि मक्का की रुयत को मुतबर माना जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कहीं पर भी दुनिया में चांद दिख जाए उनकी रुयत को मुतबर माना जाएगा। तीसरे लोग हैं जो कहते हैं कि रुयत का देखा ही नहीं जाएगा, बस साइंसी एतबार से तहकीक कर ली जाएगी चांद पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ। अगर चांद पैदा हो गया तो चाहे कहीं दिखे या ना दिखे ईद मनाई जाएगी। तो जैसे इख्तिलाफ के मामले में तो गलत है, इज्मा के खिलाफ है मेरी बात। आप कह रहे गलत है ना, आप क्योंकि नहीं, अरे भाई वो आप ये कह रहे कि गलत है, सारे लोग उसको गलत नहीं कहते, उस पर भी एक राय है। वो आप उस तबके से ताल्लुक नहीं रखते इसलिए आप गलत कह रहे हैं। उस तबके का कोई नुमाइंदा आता ना हमारे खिलाफ तो वो कह रहा होता कि आप गलत हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मतला के इख्तिलाफ जिनके यहाँ पर है, जो मतला के इख्तिलाफ को मुतबर मानते हैं, अगर उनके यहाँ मतला की तहदीद में इख्तिलाफ है तो जो एक रुयत के कायल है उनके यहाँ भी इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं मक्का की रुयत मानी जाएगी, कुछ कहते हैं दुनिया में कहीं भी रुयत मानी जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि रुयत देखना ही नहीं है। तो इख्तिलाफ दोनों जगह पर है। इख्तिलाफ दलील नहीं बन सकता है उस कौल के गलत होने की। अगर इख्तिलाफ दलील बनेगा तो दोनों का कौल गलत है, तो दोनों कौल तो गलत नहीं हो सकते। ठीक है, अब वो तो जो बोल रहे हो हिसाब किताब वाला, ये मामला तो इज्मा के खिलाफ आ गया ना। इज्मा भाई हिसाब किताब वालों के अलावा भी इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं मक्का की रुयत मुतबर मानी जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी रुयत हो मुतबर मानी जाएगी। आप ये जो कह रहे हैं ना कि इस बात के कौल के गलत होने की दलील ये कि मतला की तहदीद में इख्तिलाफ है, तो हम कह रहे हैं कि जो इत्तेफाक करने वाले वो भी इख्तिलाफ करते हैं, तो इख्तिलाफ होना कौल के गलत होने की दलील नहीं है। सिर्फ इत्तेहाद कैसे हो सकता है इस मसले में? क्यों इत्तेहाद करना है भाई? हम खुद अब देख रहे हैं कितने इसमें लफड़े झगड़े, कितने अभी मुंबई में मिसाल दी। तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में जब तक ये मतला के इख्तिलाफ वाले बहस नहीं करते थे, हिंदुस्तान में कहीं भी चांद दिखता था सारे लोग ईद मनाते एक साथ, कोई मसला नहीं था। ये जहां हर जगह पे जहां पे इख्तिलाफ है वहां इख्तिलाफ करने वाले कौन लोग हैं? जो आलमी ईद के आलमी रुयत के कायल हैं। वरना आप हिंदुस्तान में देखें कोई मसला नहीं है, सालों से लोग चांद देख करके ईद मनाते आए हैं, रोजा रखते आए हैं, कुर्बानी करते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं था, सब लोग मुत्तफिक थे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने तहकीक करके इत्तेहाद रुयत की बात करना शुरू की। जहां जहां चांद के मसले में इख्तिलाफ है वहां इख्तिलाफ करने वाले वो लोग हैं जो इत्तेहादी रुयत के कायल है। वरना जहां पे इत्तेहादी रुयत वाला तबका नहीं पाया जाता वहां पे चांद के मसले में कोई इख्तिलाफ होता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान निकलता है, लोग एक साथ रोजा रखते हैं, ऐलान निकलता है, ईद मना लेते हैं, ऐलान में निकलता है, कुर्बानी कर लेते हैं। जैसे ही कोई एक आदमी पैदा होता है ना जो इत्तेहादी रुयत का कायल है, वैसे इख्तिलाफ होने लगता है। तो इख्तिलाफ असल में इत्तेहादी रुयत के कायलीन कर रहे हैं। नहीं शेख, अभी देखिए 2000 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बम्बई की बात कर रहा हूँ। 2000 से पहले देवबंदियों ने ईद मनाई थी, बरेलियों ने नहीं मनाई थी। हत्ता कि मियां रोड की खबर कबूल नहीं की थी शेख। 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, 97 गालिबन बम्बई में 2 ईद हुई थी। देवबंदी बनाए थे, बरेली नहीं बनाए। कभी कभार हो सकता है, कभी कभार हो, ये शाज़ व नादिर ऐसा मसला होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा कितनी बार हुआ है? यानी आपको मिसाल लाने के लिए 23 साल 24 साल पहले जाना पड़ा आपको, 24 साल के बीच में आपको कोई मिसाल नहीं मिली इसकी। मेरे नजर में आई तो मैं बताया शेख, वरना तो अभी तो मिसाल तो कहीं दी जा सकती है। देखिए जितने लोग हैं सबको पता है कि आमतौर पर हिंदुस्तान में मुसलमान एक साथ ईद मनाते हैं, नॉर्मली ऐसा शाज़ व नादिर कहीं पर होता है। चलिए आपकी बात है, लेकिन मैं सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। अच्छा आप इसको मानते कि नहीं मानते हैं कि आमतौर पे हमारे यहाँ पे ही चांद के मसले में इख्तिलाफ इत्तेहाद वाले जहाँ पर मौजूद है वहीं पर होता है। जहाँ पे इत्तेहाद का कोई कौल नहीं वहाँ पे इख्तिलाफ नहीं होता है, वहाँ चांद का ऐलान निकलता है, जिम्मेदारों की तरफ से लोग ईद मना लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, कुर्बानी कर लेते हैं, वहां पर इख्तिलाफ होता ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी मानना बिल्कुल वैसे ही जैसा शेख अलबानी, शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह का मानना है कि इलाके वालों के साथ करना चाहिए। मेरा भी वही मानना है, मैं वैसे ही करता हूँ। लेकिन हम लोग को जो चीज सही लगती है वो चीज के ऊपर उलमा का सेमिनार होना चाहिए, उसके ऊपर बात होना चाहिए। भाई सेमिनार हुआ, आपको नहीं पता होगा, पाकुड़ में जो
जमीयत अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, पता नहीं उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी, मैं तो तीसरी जमात में छोटा तालिब इल्म था, उस वक्त सेमिनार हुआ बाकायदा। शेख किफायत पता नहीं कहते कि नहीं कहते, शेख आप थे पाकुड़ कॉन्फ्रेंस में? मैं उस सेमिनार में था, बल्कि इस हाँ। मौजू पर जितने मकाला पेश किए गए थे मैंने हाँ। बैठ के सुना भी था, बल्कि हाँ। शेख मकसूदुल हसन फैजी शेख मकसूदुल हसन वाला तो बहुत शानदार था, वो किताब भी मौजूद है उनकी। उनका मकाला बाद में छपा भी है, और मैंने हाँ। आज ही उसका मुताला किया, आज मैं देख रहा था उसको। शेख जी, गाजी जी। उजैर साहब का मकाला भी छप चुका है, तो उस सेमिनार में तो मैं जी, तो जी। बैठा हुआ था, मौजूद था वहाँ पे। सेमिनार जो हुआ उसमें भी खुलासा यही बात का निकला कि मताले में इख्तिलाफ मोतबर है। आपको नहीं पता होगा सेमिनार की तफसीलात, मरकजी जमीयत वालों ने भी उसके मकाले सबसे शाये अहम किए। किताब जो छपी है गाजी उजैर साहब की, उसमें तो यही है, हाँ। उसमें यही मौक़िफ़ हाँ। पेश किया गया कि एक शांत का एतबार नहीं होगी कि पूरी दुनिया में एक साथ। और ऐसा नहीं कि एक ही राय वाले सारे मौजूद थे, वहां पे दूसरी राय रखने वाले भी मौजूद थे, और शेख मकसूद सबसे आखिर में आकर के दूसरी राय वालों का बिल्कुल एकदम शानदार किस्म का रद्द किया था उन्होंने, जो दूसरी मतलब इत्तेहाद वाली राय का। हाँ, वो मुनाक़शा थोड़ा सा शदीद भी हो गया था, मैं था वहाँ शदीद हो गया था। हाँ जी, शेख जी, असगर जी, साहब मैं भी आए, मौजूद था। मामला थोड़ा ठंडा किए वो, तो जी, मामला जी, काफी वहाँ बहुत बहस हुई थी उसमें। जी। तो ऐसा नहीं कि कोई एक राय वाले थे, दोनों तरफ के राय रखने वाले बैठे थे मेरे भाई। बहुत सारी चीजों में हम इसलिए इख्तिलाफ करते हैं क्योंकि हमको तफसीलात पता नहीं होती है। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने इस पर सेमिनार कराया, दोनों तरफ के लोगों की राय आई, वो मकालात भी शाये हुए, और आप खासतौर पे शेख मकसूद वाला जो मजमून है वो किताबुस्सुन्नत.com पे वो पीडीएफ में उनका वो किताब रिसाला भी मौजूद है, शेख अबू अदनान मुनीर कबर के तकदीम के साथ, मुकदमे के साथ वो शाये हुआ है। शेख काजी उजैर शम्स वाले की किताब शाये हो चुकी है, वो भी मौजूद है, वो भी आप हाँ। डाउनलोड करके। तो सेमिनार हुआ, हिंदुस्तान में बिलउमूम उलमा की राय इख्तिलाफ मताले वाली ही रही है, और शाज़ किस्म के कुछ एक लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब इख्तिलाफ मोतबर नहीं, वरना हिंदुस्तान के अहले हदीस उलमा आमतौर पर इख्तिलाफी मतलब के कायल रहे हैं। जी ठीक है, बारकल्लाह। ठीक है जी। अलग अलग इलाकों में ऑडियंस की तरफ से मतला का मतलब हाँ। क्या है? मतला का मतलब क्या है बताइए। मतला का मतलब होता है जो वो जगह जहां पर चांद एक साथ, मतला असल में तुलूस है, इसमें ज़र्फ है, चांद दिखने की जगह, तो जो एक जगह पर चांद दिखाई देता है वो एक मतला है। जैसे हिंदुस्तान एक मतला है, मतला का मतलब होता है कि वो पूरा एरिया जहां में किसी एक चांद को जो है ना, एक जगह का चांद दूसरी जगह के लिए मुतबर माना जाए, तो वो एक मतला है, चांद दिखने की जगह। जी शेख, इसी में एक सवाल है, जैसा कि 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि तमिलनाडु लोग अपने रोजा नहीं शुरू करे, कि बाज मुंबई लोग रोजा शुरू कर दे, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो कि अगर मान लो कि मुंबई और दिल्ली में अगर चांद दिख गया लेकिन साउथ में चांद नहीं दिखा, तो ऐसे हालात में क्या किया जाए? चंद लोग, कुछ लोग तो रोजा शुरू कर दे, कुछ लोग रोजा शुरू नहीं किए, तो अपने स्टेट के रूहत फॉलो करे या फिर भाई जैसे देखिए, आपने बोला इन सब मसाइल में चांद दिखना, चांद का ऐलान करना, चांद दिखा कि नहीं दिखा, ये एक आम आदमी का काम है ही नहीं। तो जो आपकी जो उम्मत के कमेटियां है, रूयत हिलाल कमेटी, वो जो फैसला करे ना उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। बेशक एक एक फर्द जो है ना अपने तौर पे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला होता है ना कि हर आदमी अपने तौर पे फैसला कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं चांद दिखने की अलग अलग इलाकों में, और फिर उनका आपस में इत्तेहाद है, जैसे भाई अलग अलग कमेटियां चांद का ऐलान करती हैं, तो जो मरकजी जमीयत है, सूबाई जमीयत अहले हदीस है मुंबई की, माशाल्लाह सूबाई जमीयत मुंबई की, और चांद देखने का काफी एहतमाम भी उनके यहाँ पर होता है। तो आप देखें कि आप जिन जो अथॉरिटीज हमारे यहाँ पर अहले इल्म में जो कमेटियां बनाई हैं, उन कमेटियों को फॉलो करें। अपने तौर पर कोई आदमी ना तहकीक कर सकता है ना तस्दीक कर सकता है, तो बेहतर ये कि आप देखें कि शहर की जो कमेटियां हैं वो क्या फैसला कर रही हैं, क्योंकि इन कमेटियों का भी आपस में तामुल होता है। जैसे हम लोग खुद, मैं कई सालों तक के सूबाई जमीयत मुंबई की जो रूयत हिलाल कमेटी है उसका जिम्मेदार मैं रहा हूं, तो ये होता है कि कमेटी के लोग दूसरी कमेटियों के साथ आपस में तामुल में होते हैं, और सारे उम्मत के जो अलग अलग मसलक के लोग हैं वो मिल करके फैसला करते हैं कि चांद का मतलब रूयत मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो जो भी फैसला कमेटियों की तरफ से हो रहा है ना, उसको आप फॉलो करें। आप अपनी तरफ से बिला वजह अपने कंधों पे कैसी जिम्मेदारी नहीं लें जो अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे नहीं रखी है। अगर ऐसे हर आदमी अपने से चांद का फैसला करने लगेगा तो बहुत मसाइल पैदा होंगे फिर। तो फिर वो जो ईद का और रोजे का जो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अलफित्र यौमा तुफ्तिरून वस्सौम कैसे वल अज़ा यौमा तज़ूम, कि जब तुम रोजा रखो तब रोजा है, जब तुम इफ्तार करो तो इफ्तार है, जब तुम कुर्बानी करो तो कुर्बानी है। इसका मकसूद ये है कि लोग एक साथ रोजा रख के इफ्तार करें, तो उसमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। लोगों को छोड़ जो है अपने जिम्मे नहीं लेना चाहिए, वो कमेटियों के हवाले कर देना चाहिए। जो फैसला अथॉरिटीज की तरफ से हो रहा है, मुल्क की नुमाइंदा मिली तंजीमों की तरफ से हो रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए।
बेशक बेशक शेख। आखिरी सवाल ये है, जैसा कि कोई शख्स अगर कोई ऐसे कंट्री में रहता है जहां यूनिवर्सल मुस्लिम फॉलो करते हैं, तो क्या वो अपनी राय को छोड़ के वहां के रुवायत को फॉलो करना है ना? वही की रुयत, जो जैसा वहां के मुसलमान कर रहे हैं वैसा करना है। जी, मतलब वही 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 दलील है ना, जब रोजा रखते हैं, जब वही अलग, हाँ, जब रोजा रखे तब रोजा रखो, अलग से कोई अलग से उसको रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके जिम्मे नहीं डाला है। अगर मान लीजिए इस मसले में देख, पहली पतना है कि इज्तिहादी मसला है, इज्तिहादी मसले में अगर आदमी से खता भी हो जाए तो वो गुनहगार नहीं होता है। तो अगर इज्तिहादी मसले में किसी का मौकिफ ये है कि भाई चांद का मसला मुख्तलिफ होता है, तो अगर उसके हिसाब से रोजा रख रहा है, इफ्तार कर रहा है, तो भी गुनहगार नहीं होगा। और किसी का इज्तिहादी मौकिफ यही पहुंचा है कि भाई एक ही चांद है, तो उसको हम गुनहगार नहीं कह सकते, उसको भी एक मारूफ फिक़ही मौकिफ है कि उसको फॉलो कर रहा है, तो वो गुनहगार नहीं होता। इस मामले में ये इज्तिहादी मसाइल, इसमें हम दूसरे आदमी को गुनहगार नहीं कहते कि वो आदमी गुनहगार हो गया। इंसान को अपने जो मकामी मुस्लिम आबादी, मतलब जो अथॉरिटीज है, वो असल में इसकी जिम्मेदार है। चांद दिखा कि नहीं दिखा, आम आदमी इसका जिम्मेदार नहीं। आम आदमी बस जो अथॉरिटीज की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से, नुमाइंदा लोगों की तरफ से जो हुक्म दिया गया है उसके हिसाब से वो अमल करे। अल्लाह ताला का उस पर उसकी पकड़ नहीं होगी। हर फर्द को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने लाजिम नहीं किया कि वो हर फर्द खुद चांद की तहकीक करे। हमारे ये बहुत बड़ा मसला होता है। एक साल आप लोगों को याद होगा कि चांद के मसले में इख्तिलाफ हुआ और एक जगह से ऐलान आया चांद का। एक साहब ने कहा कि मैंने देखा है चांद। उनकी जिंदगी हराम कर दी लोगों ने फोन कर करके। हर आदमी फोन लगाया जा रहा है तहकीक करने के लिए, तो हर आदमी तहकीक नहीं कर सकता है भाई। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इस मामले में जो है सब लोगों को जिम्मेदार नहीं बनाया है। तो जो मिली तंजीमें हैं वो ऐलान कर रही है, काफी है उनका ऐलान। हर फर्द पर लाजिम नहीं है कि गवाही देने, जिसमें जो गवाही देगा वो हर फर्द के सामने थोड़ी गवाही देगा, वो अथॉरिटीज के सामने गवाही देगा ना, जो नुमाइंदा तंजीम है उनके सामने गवाही देगा। आप कुछ लोग समझते हैं कि हर फर्द मेरे सामने आकर के गवाही देगा तो मैं मानूंगा कि चांद हुआ है। तो ऐसे तो करोड़ों इंसान मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं, तो एक आदमी का चांद दिखेगा तो क्या करोड़ों लोगों के सामने जाकर के गवाही देगा कि मैंने चांद देखा है? इसलिए आम आदमी को चांद देखना उसका काम है, चांद देखने का काम तो हम नहीं करते। मैं इसमें थोड़ा सा भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा बाद में कि चांद देखना एक जो है ना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो हमारी जिम्मेदारी हो तो हम अदा नहीं करते, लेकिन किसी ने चांद देख लिया है तो तहकीक करने के लिए सब लोग लग जाते हैं कि हर फर्द जो है वो गवाही तक पहुंचता है। तो चांद देखे मेरे भाई, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला हो गया कि चांद देखने की जो सुन्नत है मुसलमानों की वो छूट गई है। जी शेख, ये अल्लाह के ये उम्मत की सुन्नत रही है। इस पर मैं कुछ बोल देता हूँ क्योंकि हम कल इंशाअल्लाह ताला हुयत है। ये उम्मत की सुन्नत रही है कि मुसलमान चांद देखते थे। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं तरा अन्नास वल हिलाला, कि लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, यानी लोग जो है ना निकल करके चांद देखते थे। तो लोगों ने देखा, लोगों को नहीं देखा, मैंने देखा, मुझे दिखा, तो मैंने अल्लाह के रसूल को जाकर के बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गवाही पर जो है ना लोगों को कहा कि रोजा रखो। तो अल्लाह के नबी ने रोजा रखा और लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया। तो चांद देखना मुसलमानों की उमूमी तौर पर सुन्नत है। और उलमा ने कहा कि फर्ज किफाया है चांद देखना। फर्ज किफाया का मतलब ये होता है कि उम्मत में लाजमन ऐसे कुछ लोग होना चाहिए जो चांद देखने का एहतमाम करें। कुछ लोग अगर देखने का एहतमाम करेंगे तो दूसरे को गुनाह नहीं मिलेगा, और अगर कोई भी चांद देखने का एहतमाम नहीं करेगा तो सारे के सारे लोग गुनहगार हो जाएंगे। तो मुसलमानों की सुन्नत रही कि वो चांद देखने दिखाने की कोशिश करते रहें। आज के दौर में इस पे बहुत कोताही होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कई सालों तक के चांद का ऐलान निकालना सुबह जमीयत मुंबई में मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं सड़कों पे निकल करके देखता था कि लोग चांद देखने की निकले कि नहीं निकले। तो एकदम सुनसान दिखता था। यानी वो जो शौक होना चाहिए रमजान का चांद देखने का, वो शौक लोगों में नहीं रह गया। पहले जैसे हम बचपन में थे तो हम देखते थे लोग सड़कों पे निकल के चांद देख रहे हैं, लोग टेरिस पे खड़े होकर के चांद देख रहे हैं। अब वो शौक चांद देखने का नहीं रह गया लोगों का। वो जो एक मुसलमानों की सुन्नत है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। आमतौर पर लोग मोबाइल पे इंतजार कर रहे होते हैं कि मोबाइल पे चांद का ऐलान आएगा। तो चांद मोबाइल पे नहीं दिखता है, चांद आसमान पे दिखता है। इसका खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला परसों का दिन जो जुमा का दिन है वो 29 शाबान का दिन है। तो आप बाहर निकले, सड़कों पर, टेरिस पर, छतों पर निकल करके चांद देखने की कोशिश करें। ये भी एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की सुन्नत है जो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में खत्म हो रही है। जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख सरफराज फैजी हफिज़हुल्लाह। तो आप लोगों ने दोनों तरफ के दलाइल देखे, इख्तिलाफ मताले वाले के भी और आलमी रूहियत वालों की भी। तो देखे इस मसले का जो भी मौक़िफ़ के कायल है, तो इत्तेहाद का तो हल यही सबसे बेहतर नज़र आता है कि लोग अपने इलाके वालों के साथ ही करें, अगरचा वो आलमी रूहियत के भी कायल हैं। क्योंकि ये जो हमारे रमज़ान, ईद, जो हमारे त्यौहार है, ये इत्तेहाद का दर्ज देते हैं। तो आप जिस भी मौक़िफ़ के कायल हैं तो अपने इलाके वालों के ही साथ में करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर आई प्लस की पूरी टीम को।